Okay. Now, very good afternoon to all of you. We have previous chapter area and perimeter chapter we have finished. Today we will discuss about the chapter 12 which is data handling. Okay. अब डाटा हैंडलिंग के बारे में आप क्लास 6 में पढ़े हुए हैं. क्या क्या चीज पढ़े हैं? एक था टैली मार्क्स यू नो, पिक्टोग्राफ जैसे कि बार ग्राफ, पिक्चर ग्राफ, that is pictograph also you know. But in this class we will study about different techniques to analyze the data. What is data? Some information gathered या फिर some data collected numbers gathered with numbers या फिर collection of numbers gathered to give some information is called data. वो डाटा को हम डिफरेंट टेक्निक यूज करके हम एनालाइज करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे. एंड व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एनालाइज डाटा इज टू लुक फॉर ए सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू और वैल्यूज व्हिच डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा. जो आपका डाटा दिया हुआ है जहां से हम एक वैल्यू निकालेंगे. सपोज हम बोलेंगे 7D में 50 स्टूडेंट्स हैं. इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथ्स में कितना कितना मार्क्स लाए हैं, कोई 80 लाया है, कोई 70, एनीवन 60, 50. बट उसको हम एनालाइज करेंगे और बोलेंगे लास्ट में फाइनली द एवरेज मार्क्स ऑफ 7D विल बिकम, एवरेज मार्क कितना है, सपोज 60. वो जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसका मेन मोटो हम लोग का है क्या ना, हम एक वैल्यू से हम पता करेंगे उसमें से ज्यादातर बच्चे 60 मार्क्स लाए हैं. उस तरह से कोई एक डाटा हम एनालाइज करेंगे और इसका यही वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ये आप याद रखिएगा. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द वैल्यूज, इट इज द वैल्यू और वैल्यूज टू लुक फॉर ए main purpose or the analyzing, to look for the analyzing of a data which is given in your question. Okay, in this chapter we shall learn mean median mode. Mean median mode is the measure of central tendency. क्या तीन चीज है? mean, second one is median and third one is mode. ये तीन चीज है, इसके साथ इंक्लूड है, include to measure of central tendency, mean, median and mode. Okay, अब हम लिखेंगे कुछ डेफिनेशन लिखेंगे. Okay, what is data, because in your examination multiple choice question will come. So first you write down what is data. Data is a collection of numbers. Write down. Data is a collection of numbers gathered to give some information, to give some information. The board is visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. My board is visible. Okay, right. Yes, What ma'am. is data? Data is a collection of numbers gathered to give some information. Next, you write down measures of central tendency. What is measures of central tendency? These are such values
Excuse me, ma'am. हाँ, what happened? main characteristics. मैम आप वहाँ पे क्या लिखे मैम? These are, मैम वो नहीं दिख रहा, these are के बगल में. These are such such values which describe the main characteristics of the given data. ये है measures of central tendency. Write down everybody. What is what? हाँ, what is visible to all of you? No, ma'am, it is blur. Say now. Yes, ma'am, it is blur. Ma'am, can you read it out? Okay. You this definition you have written. What is data? Data Yes, is a ma'am. collection of Yes, numbers gathered to give some information. Okay. Now measures of central tendency. These are such values which describe the main characteristics of the given data. Okay. मैम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब? हाँ, मैम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब? वही तो मेजर ऑफ Ma'am, the सेंट्रल board पर- टेंडेंसी मतलब सेंट्रल मतलब क्या है? सेंटर मीन्स अंदर में सेंटर का वैल्यू क्या है? टेंडेंसी मीन्स वैल्यू. ओके, इसका मेन थिंग्स क्या है? कोई भी अगर सपोज एक क्लास का आपको मार्क लिस्ट दिया है, उसमें से एवरेज मैथ्स में कितना मार्क आया हाफ ईयरली में, अगर फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया तो एवरेज बच्चे कितना परसेंटेज लाए सारे सब्जेक्ट में, 60 एबव लाए या फिर बिलो 60 लाए, वो सब जो एक सेंटर का वैल्यू मतलब एक टोटल वैल्यू बता देता है आपका क्लास के बारे में या फिर कोई डाटा के बारे में, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. इसलिए हम लिखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स these are such type of values which describe the main characteristics of the given data. आपको जो डाटा दिया हुआ है बेटा, उसमें से जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बताने के लिए हम जो चीज यूज कर रहे हैं वो है सेंट्रल टेंडेंसी. ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है उसको हम यूज करेंगे. उसमें क्या चीज है? एक है पहला वन इज मीन, सेकेंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड. ओके, ये जो मेजर्स क्या मेजर हम यूज करते हैं आपको पता है. एक मेजर्स हम स्केल में यूज करते हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर. इसमें मेजर्स में सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर क्या होता है? क्या चीज हम मेजर करेंगे ना, वो उसका मेजर होता है. एक है मीन, मीडियन, मोड. इसका मेजर 3 होता है. फर्स्ट वन इज मीन, मीडियन एंड मोड आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. लिखो, आर measures of central tendency. Everybody clear about that? What is measures of central tendency and what are the use of mean, median, mode? अगर कोई पूछे मीन, मीडियन, मोड आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? कोई भी गिवन डाटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए हम मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज का यूज करते हैं. क्लियर अबाउट माय पॉइंट? एवरीबॉडी क्लियर? सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मोड के आर के बाद क्या है? हाँ, दोनों आर के बाद क्या लिखा है? आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. Okay, shall I rub this one?
Yes, ma'am. Okay. Next. Next you write down raw data. एक है डाटा, दूसरी है रॉ डाटा. रॉ मीन्स कच्चा वाला. कच्चा वाला डाटा क्या होता है ना? द डाटा कलेक्टेड एंड पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट. द डाटा collected, it has written in your book also, collected and put without any specific arrangement is called raw data. एक होता है ना, हम कोई भी चीज, एक चीज हम बता रहे हैं, कोई भी चीज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका कच्चा माल हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है ना. तो वही है रॉ डाटा. रॉ डाटा मीन्स आप कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट में नहीं डालते हैं, ऐसे ही सबसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रॉ डाटा. ओके. विदाउट एनी अरेंजमेंट में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं रॉ डाटा. अब नेक्स्ट राइट डाउन रेंज. व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स हम कुछ ऑब्जर्वेशन डाटा जितना से जितना मैं आंकड़ा. हाँ हाँ आंकड़ा. हाँ डाटा जितना मैम जितने में रहता है मैम उसको हाँ. रेंज हो गया हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. यस, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस सब्ट्रैक्शन लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. ओके. अब यहाँ तक सब सारे लोग को क्लियर हो गया? यहाँ तक एवरीबडी क्लियर अबाउट दैट? यस मैम. अब हम स्टार्ट करेंगे जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. Listen, the measures of central tendency. Now we will go through one by one. First one is mean, या फिर we can say arithmetic mean. Arithmetic mean. मैम लोएस्ट के बाद क्या लिखा? मैम कैन वी से इट एज मीन? No. What is mean? Mean means आप प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े हैं एवरेज. mean means average. हाँ, means you in our daily life you frequently use the words such as, हम कभी कभी बोलते हैं average weight of your class, average height of your class, average price, average marks कितना है in your class. जो average word यूज करते हैं which represent the entire data. Okay, we say that average weight of class 7D, suppose students is 45 kilo, या फिर 7F students of average weight is 44 kilogram. That means the weight of maximum number of students, the maximum number of student is 45 kilogram. Okay, इसको बोलते हैं average, और we can say arithmetic mean. We can learn about the commonly known average which is known as arithmetic mean. What is its formula? इसका formula लिखो. mean is equal to, हाँ, mean डिवाइड बाय हाँ, sum of all observation, sum of all observations divided by number of observation, divided by number of observations. ये बहुत इजी चैप्टर है. ओके,
बहुत इजी चैप्टर है. एवरीबडी शुड डू एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन आएगा. एवरीबडी कैन एलिजिबल टू डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, नाउ by using these formulas and these things whatever I have discussed now, we will solve the worksheet 1. Now write down worksheet 1. मैम रेंज के नीचे क्या लिखे हैं? हाँ, क्या चीज पूछ रहे हैं? मैम रेंज के नीचे क्या लिखे हैं? एरिथमेटिक मीन. रेंज के नीचे लिखे हैं बेटा एरिथमेटिक मीन. उसके बाद लिखो मीन इज इक्वल टू व्हाट इज इट्स फार्मूला, या फिर एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by number of observation. NO dot means number of observation. Okay मैम. Shall I write this one? Yes मैम. मीन और एवरेज दोनों सेम ही होता है. हाँ, मीन जो है वही है एरिथमेटिक मीन, दोनों सेम है बेटा. ओके, shall I write this one? Yes ma'am. Okay. Now, worksheet 1, question number 1. See, the attendance in a school for a week is as follows. एक हफ्ता का आपका अटेंडेंस दिया हुआ है. The attendance in a school for a week. Week means 7 days का आपको दिया है. As follows. Calculate the mean of attendance. आपको mean का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? Sum of observation divided by number of observation. At first मैम सबको मैम ऐड कर देंगे फिर मैम वो जितना है उससे मैम इट शुड बी 425 प्लस 430 प्लस 400 प्लस 408 प्लस 410 प्लस 423 बाई 6. हाँ, एक मिनट. अब बार बार 2496. मैम सब कैलकुलेटर में कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा. सब कैलकुलेटर कर रहे हैं. Write down first. Mean is equal to sum of observation by number of observation. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Yes. अब sum of observation, हम ये सारे observation जो दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे. 425 plus 430 plus 400 plus 408 plus 410 plus 423 divided by number of observation. week लिखा हुआ है या फिर you can count 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है ना. तो 6 देगा. संडे छोड़ दीजिए. वीक में आपका अटेंडेंस दिया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 you divided by 6. then you add and tell me how much it come. मैम 2496 is equal to how much? मैम 415 आएगा. 416. Yes. This is the mean of attendance. Okay. Therefore, mean of attendance is equal to 416. This is your answer. I think everybody is clear about how to find out the mean या फिर arithmetic mean. यस मैम. Okay. बहुत easy है कि नहीं? It is so much easy. यस मैम. Okay, now you go to the question number 2. Completed everybody? नो मैम. यस मैम. I'm done. Done. Okay. कपड़े स्पेशल पेंट लिख दो. लिख दो. जिसकी वहां से आवाज आ रहा है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Then question number 2. See. यहाँ पे से. सुनो. तो
इतना मैम, कोई नहीं बच्चा रो पता रहा है? हाँ, क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, जिसकी वहां से आवाज हो रहा है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। See, the height of 10 boys were measured in centimeters and the results were given below. Okay, 10 बच्चे का हाइट लिखा हुआ है। What is the height of tallest boy? देखो सबसे ज्यादा किसका हाइट है? 151. Very good. 151 centimeter. Then second one. What is the height of the shortest boy? 128. कितना है shortest boy? मैम 128 होगा। 128. Yes. Then third one क्या है? What is the range of the data? अब देखो यहाँ what is the range of the data? मैम 23 होगा। 151 minus 128. 151. Highest observation minus lowest observation. ये सबसे ज्यादा हाइट वाला है, ये सबसे कम हाइट वाला है। तो इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर दीजिएगा। How much it comes? 23 centimeter. Then fourth one, they have mean. You have to find out the mean. Mean means you have to add all these things. Heights 143 plus 132 plus 149 plus 14.1 centimeter. 146 plus 135 plus 128 plus 139 plus 150 divided by how many students are, how many boys are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैम 10. हाँ, by 10 is equal to इसको मैम 10. मैम 1420. 21 by 10 is equal to 21. हाँ 142.1 centimeter. This is the mean. Okay. Sir, ma'am, answer will be 1296. हाँ No, ma'am. नहीं ऐड करो बेटा, कितना ही आएगा? ऐड करो, मोबाइल में भी ऐड कर सकते हैं आप। How many boys are there whose heights are less than the mean height? आप देखना है इसमें से 142 से कितने बच्चे कम है? एक है 132, मैम 4. मैम 4 child. 3 4 4 boys है। यहाँ पे लिख देना है 4 boys are less than mean height. Mean height आपका आ गया है 142, आपका mean height आ गया। उससे नीचे वाले कितने बॉयज हैं? देखो एक का आया है 132, सेकेंड वन 135, 128, 139। 4 बॉयज है जो मीन हाइट से कम है। ओके, और एनी डाउट? हो गया ना ये क्वेश्चन? यस मैम. अब आप बताओ, अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम बताएं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद चूज करो। क्वेश्चन नंबर 5 मैम क्वेश्चन नंबर 10. 10 मैम क्वेश्चन नंबर 5. ओके 5 अभी लिखो। 3 का हो क्वेश्चन जाएगा। नंबर एक मिनट। 10. मैम 8. 8 मैम 6. एक मिनट पहले बताओ, 3 करने का जरूरत नहीं है। नो मोबाइल पे जब डिवाइड कर रही हूँ तो 1286 आ रहा है आंसर. हाँ हाँ, क्या ये ऐड की हो? यस मैम. कितना आ रहा है? 1286. ये मैंने खुद अभी मोबाइल पे ऐड की हूँ बेटा, हमको दिखाया 1421। नाउ आई एम जस्ट एडिंग बिफोर द क्लास, 5 minutes बिफोर। आप और एक बार चेक कर लो बेटा, कहीं नंबर आप इधर उधर करके लिख दिए होंगे, आप अच्छे से चेक कर लो, इतना ही आएगा। अब पीछे आंसर कितना दिया है? गलत दिया है क्या? नो मैम यही दिया हुआ है. यही दिया है ना? मेरा भी तो इतना ही आया था, हम खुद ऐड किए थे इसीलिए हम श्योर हैं, अगर नहीं करते तो आपको नहीं बताते। हाँ इतना ही तो दिया है।
आप बेटा कहीं गलत नंबर लिखे हैं, इसको ध्यान दो आप। ओके, अब मैम एडिशन करने पे 1421 आ रहा है, बट जब डिवाइड कर रही हूँ ना मोबाइल पे तो उसमें दे रहा है, लेकिन मैं खुद से जब कर रही हूँ तो 142.1 आ रहा है। अरे 10 से डिवीजन मतलब तो एक डिजिट छोड़कर आपको डेसिमल देना है, ये डिवीजन से कोई मतलब नहीं, 10, 100 ये सब से डिवीजन से कोई मतलब नहीं, आपका खाली ये एडिशन देखो 1421 आ रहा है कि नहीं, वो देखो। यस मैम, आ रहा है। आ रहा है ना, ओके। यस मैम। मैम कौन सा क्वेश्चन लिखे हैं? आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 3, 4 तो आपको हो जाएगा, आप बोल रहे हैं इसलिए 5 लिखो। In a factory, the total number of workers are 25. Okay, how many? Out of them, the average monthly salary of 15 workers is 8,500, whereas the other 10 workers have an average salary of 9,800. Find the monthly salary of all 25 workers. Okay. At first you see what the question has said. Total number of workers is equal to 25 दिया है, उसमें से एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स दिया है। एवरेज सैलरी जब देता है हम उसका सम निकालते हैं, एवरेज मतलब एक का किसी का दिया है, इसका मतलब 15 हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन सम ऑफ salaries of 15 workers is equal to 15 into 8,500। ये क्यों हो रहा है देखो, आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, या फिर मीन की जगह में हम एवरेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि वही एवरेज वर्ड को जो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में आता है इसके बदले में हम मीन लिखते हैं। अगर हम इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है मतलब 15 लोग का मंथली सैलरी मींस एवरेज दिया हुआ है, तो ये दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सम इक्वल टू एवरेज इनटू, ये लिखना नहीं है बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ये क्यों किए हैं इसके लिए आपको बता रहे हैं, आपको पहले से एवरेज का फार्मूला पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम अगर एवरेज दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन, हाउ टू फाइंड आउट द सम? सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसीलिए दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सम ऑफ सैलरीज ऑफ 15 वर्कर्स इज इक्वल टू 15 means number of observation 15 into average is equal to 8,500. Why I have written there? I am just showing this. Okay, no need to write down this one. मैम हम लोग के बुक में मैम 25 वर्कर्स है। हाँ, 25 का टोटल नंबर ऑफ वर्कर दिया है, उसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ो, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 15 वर्कर्स दिया है बेटा, ये तुम लोग का ही बुक है, मुझे मिला है, देखो है कि नहीं? यस मैम, हाँ मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम यहाँ पे तो एवरेज सैलरी अगर निकालना है तो 15 वर्कर दे चुका है और 10 वर्कर का भी दे चुका है, तो मैम 15 वर्कर की सैलरी को और 10 वर्कर के सैलरी को प्लस करके 25 से डिवाइड कर देंगे तो नहीं होगा? नहीं मैम एवरेज सैलरी तो नहीं 8,500 एवरेज नहीं निकाल जाता है, आप उसका सम निकालना पड़ेगा, पूरा 15 लोग का कितना सैलरी, फिर नेक्स्ट 10 लोग का कितना सैलरी, दोनों को मिला देने के बाद आपको मिल जाएगा 25 लोग का कितना सैलरी, उसके बाद उसका मीन आप निकाल सकते हैं या फिर एवरेज निकालेंगे। ये है आपका। मैम एक के भी निकाल सकते हैं ना मैम, एक वर्कर का? हाँ, एक वर्कर का ऐसे नहीं निकालते हैं, अभी जैसे हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, इसका जो प्रोसेस है देखो बेटा, मैथ्स में निकालने के लिए तो आपको हजारों तरीका है, बट अभी जो चैप्टर वाइज हम जा रहे हैं उसके हिसाब से आप इस तरह से जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन आएगा जो इसी फार्मूला के थ्रू ही बनेगा और कोई फार्मूला के थ्रू बन ही नहीं सकता है,
इसीलिए आपको जब एवरेज और कितना वर्कर देता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम निकालेंगे। पूरा टोटल सैलरी 15 लोगों को कितना दिया जा रहा था, तो ये हो गया आपका इतना ही सैलरी दिया जाता था। ओके, 15 से 8500 आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, नाउ अब सेम होगा सम ऑफ सैलरी। अब नेक्स्ट 10 लोग का देगा सम ऑफ सैलरीज ऑफ 10 वर्कर्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक वर्कर का कितना होता है, दिया है 9800 इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर दो 98000। ओके, नाउ अब टोटल सैलरी निकाल देंगे। ये 15 लोग का, ये 10 लोग का। देन मैम आंसर आएगा 9 मैम 9020 मैम आंसर आएगा। हाँ हाँ, पहले ऐड करो इन दोनों को। टोटल सैलरी इज इक्वल टू 127,500 प्लस 98,000 प्लस मैम 98,000 divided by 25. 225 मैम बोर्ड इज नॉट 225,500 इतना ही आपका ऐड करने के बाद आएगा। नाउ एवरेज ऑफ मंथली सैलरी, एवरेज ऑफ monthly salary of मैम 225,500 मैम डिवाइडेड बाय 25 मैम आंसर मैम आएगा 920 नहीं आ रही है 20 divided by 25 आपको ये कितना आएगा 9020 रुपीस। मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर मैम 9020 आंसर। हाँ मैम बोर्ड इज नॉट हाँ, see now बोर्ड इज नॉट विजिबल। बोर्ड क्लियर आ रहा है कि नहीं? आशीष सिंह मैम नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, हमको तो दिख रहा है बोर्ड क्लियर। आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है मैम। हाँ लेकिन मुझे देखो, अब इसका तो फोटो हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे बेटा। जितना दिख रहा है उतना लिख लो और एक बार स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे तो आप मैच करवा लीजिएगा कहीं अगर छूट गया हो। तो इसको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करें? 6 7 में हाँ 6 में बेटा सेम है मैम 9 और 10 9 और 10, बाकी सब हो गया है। और किसी को कोई डाउट है? बता दीजिए। हाँ तो 9 लिखो फिर। Shall I drop this one? Nobody is saying nothing. What happened? हाँ next which question I will do? Shall I drop this one? No मैम नंबर 3 बताइए। Write down first. Question number 6. Mannat is writing, ma'am. Question number 6. 7D. Okay. Shall I drop this one? जल्दी जल्दी करो, टाइम खत्म हो रहा है। यस मैम कर दीजिए, लिख लियो। हो गया, completed. Shall I drop now? Yes ma'am. Okay. Now, question number 6. 6 के बाद 9 and 10. Someone is asking question number 6. See, same type of questions is given. Question number 6. Average salary of 19 workers is given. Okay. Then you write down
sum of salary of 19 workers is equal to 19 into per month कितना दिया है 12,000 is equal to you multiply and tell me how much 2,28,000. 2,28,000. Okay. Next, salary of manager is given. Okay, one manager is there. Salary of manager is equal to how much? 42,000 per month. 42,000. अब ये हो गए 19 वर्कर्स का सैलरी. ये भी वन है, जो भी वर्कर है ये मैनेजर है, बट इन ए फैक्ट्री दे आर ऑल सर्विंग. ओके, तो टोटल वर्कर्स हो गए 20 है कि नहीं. 19 प्लस 1 20 हो गए. अब टोटल सैलरी दोनों को मिलाकर टोटल सैलरी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 2,28,000 प्लस 42,000 is equal to how much? 2,70,000. 2,70,000. Now, question is given. Average monthly salary paid to all the employees. The employees first one is 19, another one is manager. The means total employee हो गए 20. The average salary, average of monthly salary is equal to 2,70,000 divided by 20 because number of employees हो गए 20 is equal to how much? 13,500. 1,000. 13,500 is your answer. 3,500. आंसर आपका 13,500. Yes, ma'am. मैम, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये कि अगर एवरेज सैलरी पूछ रहा है तो पूरे वर्कर का क्यों निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3 का रिपीट कर दीजिए एक बार. हाँ, क्या पूछ रहे हैं, पूछो. मैम, अगर एवरेज सैलरी निकालना होता है तो पूरे जितने भी वर्कर होते हैं उनका क्यों पूरे सैलरी निकालना? एक का दिया